ایک کو ابتدائی مہینہ کہتے ہیں، ایک کو انتہائی یعنی تکمیلی مہینہ کہتے ہیں۔ ایک ابتدا ہے، ایک اس کی انتہا ہے۔ ابتدا ذریعہ ہے، انتہا مقصود ہے۔ ابتدا میں کلیاں نکلتی ہیں اور تکمیل میں آ کے پھول بن کر مہکنے لگ جاتی ہیں۔ ابتدا میں پھل ظاہر ہوتے ہیں اور انتہا میں پک کر نفع مند ہو جاتے ہیں۔ تو بہار کے موسم دو ہیں، ایک ابتدائی ہے اور ایک تکمیلی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے نبی کی ولادتیں بھی دو ہیں، ایک نبی کی جسمانی ولادت ہے، ایک نبی کی روحانی ولادت ہے۔ جسمانی ولادت سے کیا مراد ہے؟ روحانی ولادت سے کیا مراد ہے؟ جسمانی ولادت سے پیدا ہونا مراد ہے، جسمانی ولادت سے اس دنیا میں آنا مراد ہے، جسمانی ولادت سے اس دنیا میں آپ کا ظہور مراد ہے، اور روحانی ولادت سے آپ کا سر پہ تاج نبوت سجا لینا ہے، تاج نبوت پہن لینا ہے۔ جس طرح بہار کے دو مہینے ہیں، بالکل اسی طرح نبی کی ولادتیں بھی دو ہیں۔ ہم نبی کی جسمانی ولادت کو بھی مانتے ہیں، روحانی ولادت کو بھی مانتے ہیں۔ تبھی تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اور حضرت تھانوی نے اور تحفۃ الصیام کی دوسری جلد میں ہے، لہذا الشہر فی الاسلام فضل، لہذا الشہر فی الاسلام فضل، ومنقبۃ تفوق علی الشہور، ربیع فی ربیع فی ربیع، ونور فوق نور فوق نور۔ اس مہینے کی لہذا الشہر فی الاسلام فضل، اس مہینے کی ایک خاص منقبت اور فضیلت ہے۔ ومنقبۃ تفوق علی الشہور، جو باقی مہینوں پر فائق ہے، جی وہ کیا ہے؟ ربیع فی ربیع فی ربیع، بہار اندر بہار اندر بہار ہے۔ ونور فوق نور فوق نور، نور پر نور پر نور پر ہے۔ اس میں تین بہاریں ہیں اور اس کے اندر تین نور ہیں۔ جسمانی ولادت کو ہم مانتے ہیں، اس کا ہم انکار نہیں کرتے۔ اللہ اللہ آمد حبیب خدا کا یہ غلغلہ، اللہ اللہ آمد حبیب خدا کا یہ غلغلہ، اس قدر شان سے اس دنیا میں آ سکتا ہے کون؟ کس قدر شان سے؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں 6 ماہ تک مجھے اس کا احساس نہ ہوا، 6 ماہ کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے پیٹ کے اندر محمد مصطفیٰ ہیں، لیکن میں کیا محسوس کرتی ہوں؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میں چلا کرتی تھی نیچے سے پتھر موم بن جایا کرتے تھے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں جب میں درختوں کے قریب سے گزرتی تھی تو درختوں کے پتے اور شاخیں بھی مجھے سلامیاں کیا کرتے تھے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں جب میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی تھی کو ہم بہار مانتے ہیں۔ کیسے بہار مانتے ہیں؟ اللہ اللہ آمد حبیب خدا کا یہ غلغلہ، اس قدر شان سے اس دنیا میں آ سکتا ہے کون؟ جی کس قدر شان سے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی تھی تو پہاڑ بھی مجھے سلامیاں پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میں کنویں کے پاس جایا کرتی تھی جو گہرائیوں میں
उतरा हुआ पानी खुद बखुद ऊपर आ जाया करता था। मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत के क्या कहने। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा पैदा हुए, जब मोहम्मद मुस्तफ़ा पैदा हुए, आपके नाखन कटे हुए थे, आंखों में सुरमा लगा हुआ था, और आंखों में सुरमा लगा हुआ था, आपके बाल बने हुए थे, आपका खतना किया हुआ था। वलीदा मख्तूनन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मख्तून पैदा हुए। आपकी क्या शान है। जब आप पैदा होते हैं, जब आप पैदा हुए, आपने सबसे पहले अपनी जबीने नियाज के तकद्दुस को जमीन पे झुका के बता दिया, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजारों सजदों से देता है आदमी को निजात, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। अल्लाह अल्लाह आमदे हबीबे खुदा का ये गलगला, उस कदर शान से इस दुनिया में आ सकता है कौन। बारगाह मुस्तफ़ा में सहाबा का ये हुजूम, इतने ताबिता सितारे भला सजा सकता है कौन। दारे फानी में मोहम्मद की मोहब्बत है बका, दारे फानी में मोहम्मद की मोहब्बत है बका, जो नसीर उस पे मिटा भला उसको मिटा सकता है कौन। जिस्मानी विलादत को भी बहार मानते हैं। लिहाजा शहर फिल इस्लामी फजलुन लिहा रबीउन फी रबीन फी रबी, पहले रबी से मौसम पहले रबी से मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात मुराद है, दूसरे रबी से मौसम बहार है, और तीसरे रबी से रबीउल अव्वल मुराद है। इसकी फजीलत तो मैं मुतलकन यूँ तो इसकी कोई फजीलत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी तफसील किए देता हूँ। रमज़ानुल मुबारक की फजीलत की 3 वजह हैं। नंबर 1, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, इसमें कुरान शरीफ उतरा है, इसलिए रमज़ान की फजीलत है। नंबर 2, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इसमें लैलतुल क़द्र आई है, इस वजह से इसकी फजीलत है। नंबर 3, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, इसमें मलाइकतुल्लाह फरिश्तों के मलाइकतुल्लाह जिब्रील अमीन के साथ मलाइकतुल्लाह जिब्रील अमीन भी बाकी मलाइकों के साथ मिलकर ज़मीन पे आते हैं, लोगों को सलामतियों के तोहफे देते हैं। रमज़ानुल मुबारक की ये फजीलत है। इमाम ज़ुरक़ानी फरमाते हैं, अगर रबीउल अव्वल की भी, रबीउल अव्वल को भी अल्लाह ने बाज़ हसीतों से बढ़ा दिया है। अगर कुरान रमज़ानुल मुबारक में आया है तो साहिब कुरान रबीउल अव्वल में आया है। अगर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र रमज़ानुल मुबारक में है तो साहिबुल क़द्र वल इज़्ज़ति वल मआब रबीउल अव्वल में है। अगर फरिश्ते रमज़ानुल मुबारक में आए हैं तो जिसकी वजह से उतरते हैं वो रबीउल अव्वल में आया है। लिहाजा शहर फिल इस्लामी फजलुन व मनकबतुन तफूकु अला शुहूरी, बहार के मौसम भी 2 हैं, नबी की विलादतें भी 2 हैं, और नबी के सीरत के पहलू भी 2 हैं। मैं मुख्तसर करके मेहमान को दावत देना चाहता हूँ। नबी की सीरत के पहलू भी 2 हैं। नंबर 1, नबी की सीरत का पहलू है नबी की खुसूसियात। नबी की खुसूसियात में क्या है। नबी की खुसूसियात में ये है, हज़रत अली मुर्तज़ा से रिवायत है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्तल जिस्मी, हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद दरमियाना था, ना ही तो लंबा था तो जो बिल्कुल ही गंदा लगे, ना ही तो बिल्कुल छोटा था जो बिल्कुल ही गंदा लगे, बल्कि दरमियाना कद था। वजूद में मुकद्दम है, ज़ुहूर में मुअख्खर है। नबी की खुसूसियात में एक खुसूसियत ये भी है, फुज़िलतु अलल अंबिया बिसित्तिन ऊतीतु जवामिअल कलिम व उहियलत लियल गनाइम जुइलत लियल अर्ज़ मस्जिदन व तुहूरा, जुइलत लियल अर्ज़ मस्जिदन व तुहूरा। नबी क्या फरमाते हैं, फुज़िलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, 6 वजह से मुझको नबी पर मुझको अंबिया पर फजीलत है। नंबर 1, वनुसिरतु बिर्रुब, मेरे रोब के साथ मदद की गई। नंबर 2, उहियलत लियल गनाइम, गनीमतें मेरे लिए हलाल की गई और पूरी जमीन को मेरे लिए मस्जिद बना दिया गया। व खुतिमा बिहन नबीयुन, और मुझ पे खत्मे नबूवत का ताज पहनाया गया। नबी की खुसूसियात में ये भी है, सबसे पहले जिस नबी का सवाल होगा वो मोहम्मद मुस्तफ़ा होंगे। सबसे पहले जो जन्नत में जाएंगे वो मोहम्मद मुस्तफ़ा होंगे। सबसे पहले जिनकी कब्र शक होगी वो मोहम्मद मुस्तफ़ा होंगे। सबसे पहले जो कब्र से उठेंगे वो मोहम्मद मुस्तफ़ा होंगे। सबसे पहले जो शफात करेंगे वो मोहम्मद मुस्तफ़ा होंगे। सबसे पहले जिनकी शफात कबूल होगी वो मोहम्मद मुस्तफ़ा होंगे। सबसे पहले जो जन्नत में कदम रंजा फरमाएंगे वो मोहम्मद मुस्तफ़ा होंगे। सबसे पहले जिनके लिए जन्नत खोली जाएगी वो मोहम्मद मुस्तफ़ा होंगे। हाँ, मा बका ज़िल्लुहु अलल अर्ज़िकतु, नबी की खुसूसियात में एक
एक खसूसियत ये भी है, नबी का साया कभी भी जमीन पे ना पड़ा था। नबी की खसूसियात में ये भी है, माज़ाहरा बौलू अलल अर्ज़ि कत्तु, नबी का बोलो बरात जमीन पे कभी भी ज़हर ना हुआ था। नबी की खसूसियात में ये भी है, नबी जिस सवारी पे कदम रखते थे वो सवारी कभी भी नाफरमानी न करती थी। नबी की खसूसियात में ये भी है, नबी सोता है, नबी की आंखें तो सो जाती हैं, दिल पे भी बेदार रहता है। यही तो वजह है जब हजरत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल होता है, जब इंतकाल हुआ सहाबा कहने लगे नबी वफात पा चुके हैं। दूसरे सहाबा कहने लगे नबी वफात पा चुके हैं। उमर कहने लगे नबी ने वफात नहीं पाई। उमर भी सच्चा था, सहाबा भी सच्चे थे, उमर भी पक्का था, सहाबा भी पक्के थे। लेकिन फर्क ये है, सहाबा की नजर नबी के दिल पे थी, सहाबा की नजर नबी की आंखों पे थी जो सो जाती है, और उमर की नजर दिल पे थी जो बेदार रहता है, जो बेदार रहता है। नबी की खुसूसियात में एक खुसूसियत ये भी है कि सीरत के पहलू भी दो हैं, बहार के मौसम भी दो हैं, नबी की विलादतें भी दो हैं, और नबी के सीरत के पहलू भी दो हैं। पहला खुसूसियात पैगंबर है और दूसरा तालीमात पैगंबर है। मैं तो इतना वक्त आपका नहीं लेता, अब मैं मेहमान को दावत देता हूँ कि वो आए। कारी मोहम्मद सज्जाद साहब, कारी मोहम्मद सज्जाद।